Good morning to all of you and welcome to the new class. Finally, today we will start our new subject, that is SPCC, Secretarial Practice and Commercial Correspondence. Okay. Now I am sharing my content. Just confirm me that you all are able to hear me clearly and able to see the slides clearly. Okay. If anyone facing problem, please tell me. No problem. That's too good. Now we will study about the SPCC. See here, you all have studied at least your subject one time, so you know about all the subjects. But what is the SPCC? That is in your book it is written Commercial Correspondence and Secretarial Practice. Okay, this is our new subject which is introduced in the commerce field. See here, commercial. Why new? Not new subject. It means it is in already in your syllabus from the last 10-20 years, so nothing new. But I am saying that you are going to study first time. Secretarial, what is the meaning of, first we should understand what is the meaning of commercial correspondence. See, what is the commercial means? Business, right? Basically what we understand commercial means business, right? Correspondence means how we talk to each other, how we share our knowledge. So in this subject we will understand how business people talk to each other. And the second point is secretarial practice. It is divided in two parts. Here you can see your syllabus portion, part 1 and part 2. It is divided basically in two parts. First part is commercial correspondence and part 2 is secretarial practice. In the first part, commercial correspondence, we will know how the people communicate to each other. Not only people, it means how the businessmen communicate to each other, the business community communicate to each other. Okay, like the first chapter will be meaning of communication and methods, right? In this chapter we will study about the how can we talk to each other and what are the methods to talk, right? The second one will be effective letter writing. We know that the senior peoples who are holding a position, they not just don't call and talk, they communicate with the letters, right? So there will be this will be taught in second chapter. The third one will be outward appearance of a business letter. Outward appearance of the business letter means कि एक बिजनेस लेटर जो होता है नॉर्मली वो कैसा होना चाहिए, राइट? हाउ इट शुड बी अपीयर. वन सिंगल एग्जांपल, लाइक जब हम लोग किसी पार्टी में या किसी फंक्शन में या किसी मैरिज में जाते हैं तो हम एक वेल ड्रेसअप होकर जाते हैं, देख के ही पता चल जाता है ओके तो ये शादी में जा रहे हैं, ओके तो ये किसी फंक्शन में जा रहे हैं, राइट? वो वेल ड्रेसअप देख के आइडिया लग जाता है कि किसी फंक्शन में ही डेफिनेटली जा रहे हैं. नॉर्मल ट्राउजर पहन के घर पे घूम रहे तो ओके ये नॉर्मल वाला है. तो एक कपड़े देख के अंदाजा लग जाता है कि द पर्सन वेयर ही इज गोइंग. तो सेम वे बिजनेस जो लेटर होता है उसका भी एक आउटवर्ड अपीयरेंस होता है. ओके. फोर्थ वन इज लेआउट ऑफ अ बिजनेस लेटर. लेआउट मीन्स उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है कि वो कैसा होना चाहिए, हाउ इट शुड बी रिटेन, लाइक सैल्यूटेशन कैसा होना चाहिए. जैसे हम लोग टीचर्स को लिखते हैं तो डियर प्रिंसिपल, डियर, और फ्रेंड्स को लिखते हैं तो डियर फ्रेंड, राइट? रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, रिस्पेक्टेड सर. बट जब कम्युनिकेट ये जो बिजनेसमैन कम्युनिकेट करते थे, हाउ दे कम्युनिकेट, वो सारे जो मेथड्स हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं, वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे. फोर्थ फिफ्थ चैप्टर इज लेटर ऑफ इंक्वायरी एंड लेटर their replies. Six, letter of order, their execution, letter of claims, complaint and their adjustments, letter of inquiry regarding financial status and collection letters. See, ये जो बाकी के चैप्टर्स हैं इसमें हम लोग सीखेंगे कि लेटर्स लिखते कैसे हैं. लिखना सबको आता है, हमने काफी बार एप्लीकेशंस लिखे हैं,
बट अलग अलग कम्युनिटी को अलग अलग तरीके से लेटर लिखना था। लाइक अगर इंक्वायरी करना है तो अलग मेथड है, उसमें वर्ड्स जो है वो डिफरेंट होने चाहिए। अगर उसका रिप्लाई करना है तो वर्ड्स डिफरेंट होने चाहिए, राइट। देयर इज अ वे फॉर ईच एंड एवरीथिंग। सो वो प्रॉपर वे होना जरूरी है। ऑर्डर दे रहे हैं तो वो अलग होगा। एग्जीक्यूशन यानी कंफर्मेशन, लाइक कैंसलेशन, ऑर्डर कैंसिल करना है तो उसके लिए कैसे रिप्लाई करना, सो दैट वो सामने वाला पर्सन को भी बुरा ना लगे और हमारा काम भी हो जाए। सो वी शुड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। और सेम वे ये रिमेनिंग 2 चैप्टर्स भी हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो हमारा होगा बेसिकली, उस फर्स्ट पार्ट में हम ये सीखेंगे कि हाउ टू करस्पॉन्ड टू ईच अदर, हाउ टू टॉक टू द ईच अदर। बिजनेसमैन जो होते हैं, दे हाउ टू कम्युनिकेट, राइट। जो हमारा सेकंड पोर्शन होगा पार्ट 2, दैट इज पार्ट 2 सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। इसमें क्या होगा कि वी विल स्टडी अबाउट द सेक्रेटरी इन द बिजनेस। सेक्रेटरी का मतलब क्या था, जैसे तुमने मूवीज में सुना होगा कि हमारे सेक्रेटरी, आप इनसे बात कर लो, राइट। और एजुकेशन में भी आपने सुना होगा सीएस के बारे में, कि वो भी कंपनी सेक्रेटरी होते हैं। तो कंपनी को जो रन करते हैं ना, वो तो मैनेजमेंट होते हैं, बट उनका रेगुलर डे टू डे वर्क जो होता है ना, वो ये पर्सन देखता है, सेक्रेटरी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्रेटरी, टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्या होना जरूरी है, उसकी लिमिटेशन क्या है, अथॉरिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। वी विल सी ईच एंड एवरीथिंग अबाउट सेक्रेटरी। ओके, आई एम ट्राइंग टू स्पीक लाउडर। सी हियर, नेक्स्ट इन कंपनी सेक्रेटरी। फर्स्ट टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, उसके बाद हम जो फोकस होगा बेसिकली वो किस पर होगा, कंपनी सेक्रेटरी पे, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कंपनी कॉमर्स। दैट्स वाई हमारा जो मेन फोकस होगा किस पर होगा, कंपनी सेक्रेटरी पर। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड वन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, हाउ टू स्टार्ट द बिजनेस। हम सबको पता है कि बिजनेस स्टार्ट करना होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि मॉर्निंग में उठे चलो भाई आज आज नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मॉर्निंग में उठे मुंह धोया और बिजनेस स्टार्ट कर दिया। वी कैन नॉट डू दिस लाइक, राइट। ओके, तो देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर, वो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। गवर्नमेंट से परमिशन, उसके बाद जहां स्टार्ट करना है वहां से परमिशन, अलग अलग कम्युनिटी से परमिशन। सो हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, टोटल वे इसमें एक्सप्लेन्ड है। उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये एक तरह का कम्युनिकेशन लेटर होता है आउटसाइडर और इनसाइडर के लिए। इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। इन दोनों में क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन, एक आउटसाइडर्स के लिए होता है, एक इनसाइडर्स के लिए होता है। इनसाइडर्स का मतलब द पर्सन हु आर वर्किंग इन द कंपनी, एंड आउटसाइडर का मतलब आउटसाइड पार्टीज लाइक शेलर, कस्टमर्स, ये इन सब के लिए। नेक्स्ट वन इज प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस एक तरह का एडवर्टाइजमेंट है कि इसमें वी विल स्टडी की जब कंपनी स्टार्ट होता है तो उसके बाद हम सबको पता है कि आपने शेयर्स के बारे में डेफिनेटली न्यूज में सुना होगा कि रिलायंस कंपनी के शेयर की प्राइस इंक्रीज हो गई, किसी कंपनी के शेयर की प्राइस डाउन हो गई। तो वो जो शेयर परचेस करना होता है, सेल करना था, उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, एक एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और दैट एडवर्टाइजमेंट इज नोन एज अ प्रोस्पेक्टस। ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट द कंपनी, ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट द कंपनीज मैनेजमेंट, कंपनी शेयर, कंपनीज वर्किंग, लाइक वर्किंग वे, सब चीज के बारे में इसमें लिखा होता है। दैट्स वाई जो कस्टमर्स होते हैं वो इजिली, मतलब जो शेयर होल्डर्स होते हैं जिनको शेयर परचेस करना आता है, वो इजिली अट्रैक्ट हो जाते हैं। और नेक्स्ट होगा फाइनल चैप्टर, शेयर कैपिटल एंड टाइप्स ऑफ शेयर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल आर देयर, एंड व्हाट इज शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, एंड व्हाट टाइप ऑफ शेयर्स, all we study in this chapter. So this way our 2 parts will be, right. First part commercial correspondence, first part में latest के बारे में, how to communicate, and second part में business के बारे में। I hope at least portion क्या है that is clear to you. Now we will know about the first chapter, that is chapter 1, meaning of communication and its method. How can we communicate to each other? It is necessary to communication. See, फर्स्ट इसका एक बार पोर्शन देखते हैं क्या है, व्हाट इज द पोर्शन, व्हाट विल यू लर्न इन दिस चैप्टर। द फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन। फर्स्ट कम्युनिकेशन के बारे में इंट्रोडक्शन है। उसके बाद कमर्शियल कम्युनिकेशन, क्योंकि नॉर्मल कम्युनिकेशन अलग होता है, कमर्शियल कम्युनिकेशन अलग होता है। अब जैसे किसी बिजनेसमैन मीटिंग में जाना है तो वो नहीं बोलेगा और भाई बता क्या चल रहा है, नो। सो देयर इज अ डिफरेंस, राइट। ओके, सो हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ दे कम्युनिकेट, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन है। उसके बाद है द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। हर चीज का एक प्रोसेस होता है, राइट। ऐसा नहीं है कि विदाउट एनी प्रोसेस के वो काम स्टार्ट करे। जैसे अगर हमें खाना भी बनाना होता है, उसका एक प्रोसेस है कि एक स्टार्ट पॉइंट होता है और एंड पॉइंट होता है, राइट। सो ईच एंड एवरीथिंग हैज अ प्रोसेस। तो सेम वे कम्युनिकेशन का भी एक प्रोसेस है, उसका भी हम लोग स्टडी यहाँ पे करने वाले हैं। एंड मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट टाइप ऑफ मेथड वी कैन यूज एज पर द रिक्वायरमेंट, लाइक ओरल कम्युनिकेशन, रिटेल, विजुअल, ऑडियो, ऑडियो विजुअल, साइलेंस, चुप रहना भी बहुत बड़ा कम्युनिकेशन होता है। So we will study all things about
in this topic. And next one is oral communication and written communication. See, other communication is important, but business में basically इन दो communications का काफी use होता है. First one is oral communication and second one is written communication. That's why we will study about these two topics only in this chapter. I hope the at least syllabus is clear for the first chapter. Now we will start our the introduction portion. Okay, तो बेसिकली स्टार्ट करने से पहले कम्युनिकेशन क्या है मैं एक नॉर्मल वे में एक्सप्लेन करता हूँ. हम सब अपनी डेली लाइफ में कम्युनिकेशन करते ही हैं, चाहे फ्रेंड से बात करना हो, मम्मी से बात करना हो, किसी से भी बात करना हो. विदाउट कम्युनिकेशन वी कैन नॉट लिव. अगर कोई बोल दे कि प्लीज 10 दिन के लिए चुप रहो, 10 दिन छोड़ो यार, बहुत इट इज टू फॉर. 10 मिनट के लिए चुप होके बैठ जाओ, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस. क्योंकि कम्युनिकेशन क्या है, हमारी बेसिक नीड है. विदाउट बोले तो हम रह ही नहीं सकते. जैसे स्कूल्स में बोलते हैं ना, टीचर्स बोलते हैं ना, फिंगर ऑन योर लिप, लेकिन वो कितने देर तक रहता है? 5 मिनट के लिए रहता है, उसके बाद गायब. तो क्यों हम विदाउट कम्युनिकेशन वी कैन नॉट लीव. इवन अगर ऐसे भी होता है ना तो फ्रेंड को चलता रहता है. तो ये सब क्या है? ये भी कम्युनिकेशन है. इशारे हो रहे हैं, इधर है उंगली लेकिन इशारे हो रहे हैं, तो दैट इज अ कम्युनिकेशन. वी कैन नॉट लीव विदाउट द कम्युनिकेशन. तो उसी के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन है. नाउ सी हियर इंट्रोडक्शन पोर्शन देखते हैं कि तुम्हारे चैप्टर सिलेबस में क्या लिखा हुआ है. इंटरेक्शन विथ अदर्स और कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली एन एक्टिविटी consciously undertaken but also basic need for every living being. सिर्फ ये कोई एक्टिविटी नहीं, इट इज नॉट ओनली एन एक्टिविटी, इट इज द बेसिक नीड. ओके, इवन जो बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, दे ऑल्सो कम्युनिकेट. मतलब ये क्या, उनका बेसिक नीड है. गुस्सा आया तो भौंकते हैं, राइट? तो ये सब उनका क्या है? देयर इज दिस इज अ वे टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग, एक्सप्रेस देयर लव टू द पीपल. So same way communication for the normal people is also important. So why we communicate? Why we communicate? In order to express one's feeling and exchange of ideas. See, अगर किसी को अपनी feeling share करना है, then we have to communicate, right? Without communication, it is not possible to share your feeling. Like भूख लगी है, गुस्सा आ रहा है, मम्मी को बोलते मम्मी भूख लगी है, तो एक्सप्रेस करते हैं मम्मी भूख लगी, एक्सप्रेशन निकल जाता है अपने आप चेहरे से. प्यास लगी है तो इशारे करते हैं कि मम्मी प्यास लगी है. तो ये सब क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ वंस फीलिंग, exchange of idea. It becomes imperative to come into and remain in contact with other, and it is necessary, it is requirement कि अगर आपको किसी के साथ कांटेक्ट में रहना है तो you have to communicate, you have to communicate with each other on a daily basis. That in that way you can only live. In this chapter we shall learn about communication and also the difference between routine communication and commercial communication. I already told you there is a difference between routine communication and commercial communication. Why? Commercial communication is a systematic way. There is a rules and regulation which have to be followed. But in a normal routine communication, there is a no rules and regulation. You can talk to anyone. But in a commercial communication, there is a rule. Like I cannot talk. See, जैसे एक नॉर्मल स्कूल में ही होता है, अगर प्रिंसिपल से भी मिलना होता है तो वी हैव टू टेक परमिशन, राइट? हमें जाके एडमिनिस्ट्रेटिव में परमिशन लेना पड़ता है कि आई वांट टू मीट प्रिंसिपल. फिर वो जाके प्रिंसिपल से बोलेंगे मैम देयर इज अ वन पर्सन हु वांट टू मीट यू. फिर वो बोलेंगे ओके ओके लेट कम इन. इसका मतलब क्या होगा? देयर इज अ प्रॉपर रूल्स. सो इन दैट वे commercial communication is a different from the routine communication. Now we shall logically and chronologically understand the process of communication. There is a logical and chronological way. We have to understand that thing. We shall also consider in detail different methods of communication that we use, their characteristics and limitations. We should know what is the limitation, what is the characteristics of each and every communication, because each and every communication has an advantage and disadvantage, right? So we should understand advantage and disadvantage of all the things. There is always two sides. Now, if we take the case of social, culture and commercial, literally field, one element that draws our attention is that activities undertaken for different purposes are somewhat similar and to some extent different. See, जितने भी टाइप की कम्युनिकेशन होते हैं, सोशल, कल्चर, कॉमर्शियल, सब कम्युनिकेशन में कुछ ना कुछ चीजें कॉमन होती हैं और कुछ ना कुछ चीजें अलग होती हैं. बात करना है, देयर इज अ टू वे, यू कैन टॉक इन रिटन वे और यू कैन टॉक इन ओरल वे. ये सब में कॉमन है. कभी कभी हम कुछ नहीं बोल पाते हैं प्रिंसिपल से, जैसे कोई परमिशन लेना हो तो हम कभी कभी डायरेक्टली जाके मिल लेते हैं, कभी कभी रिटर्न में एप्लीकेशन देते हैं. सो इट देयर इज ऑलवेज different and there is always similarity between these things. Now
There are specific modes and styles for different types of communication. Their skills and method differ from one another. There will be difference, and we will study about the differences. What are the difference between various methods? Your voice stucking. I think it may be because of net problem. No, my net is working good. Actually, try to join again so that it will help you. Maybe because of network problem. Now see here, it becomes it becomes necessary to maintain this variety and peculiarity, and also to incorporate it with concise effort. Okay, thus the process involving particular style, skill, appropriate means employed for exchange of information is known as the process of communication. There is a proper style, skills, and means there are some instruments to be employed to talk, like we are talking by the this internet communication. So there is some means there is some instrument with the help of which we are talking. Now, the word communication in English derived from the Latin word. You should remember this. The word communication is derived from the Latin word which is communicare. Communication is Latin word which means communicare, meaning to share, to interact, to exchange, and to participate. Okay, in a communication we shares, we interact, we talk to each other, we exchange our ideas, right? And it is not possible without participating in it. Like in a classroom, there are 2 to 4 friends who are talking to each other. If one friend is sitting silently, he cannot understand the what is happening between all the people, right? He have to participate so that he can exchange his ideas, he can interact with the person. Okay, so this is necessary for the communication. I hope the communication basic introduction you have understood. Now, what is the commercial communication? See, what is communication? Communication nothing, it is just a way to express your ideas, express your emotions, right? Express your feelings. Now, what is commercial communication? Commercial communication is a bit different. The process of communication undertaken for commercial purpose. If it is for the commercial purpose, then it is known as a commercial communication. Just one word. If it is for commercial purpose, then it is known as a commercial communication. A businessman has to remain in contact with two different groups: the manufacturer and the seller of the goods from one group, and their customers from another group. See, जो बिजनेसमैन होते हैं उनको अलग अलग कम्युनिटी से, अलग अलग फील्ड के लोगों से कंटिन्यू टच में रहना जरूरी होता है. एंड फॉर दैट दे हैव टू कम्युनिकेट. विदाउट कम्युनिकेशन ये पॉसिबल नहीं है. लाइक सेलर्स हो गए, सेलर से कंटिन्यू टच में रहना पड़ता है. आई नीड दिस रॉ मटेरियल एट दिस प्राइस, और आपके पास कोई पहचान में है कि मुझे और भी एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए तो प्लीज प्रोवाइड मी. कस्टमर से कंटिन्यू टच में रहना पड़ता है. लाइक एडवर्टाइजमेंट हो गया, अलग अलग तरीके होते हैं. उनको नेट पे एडवर्टाइजमेंट देते, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देते, इवन कभी कभी घर पे जाके समझाते हैं ये न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, यू कैन बाय इट फ्रॉम आवर स्टोर्स, यू कैन विजिट आवर स्टोर्स. सो इट इज नेसेसरी फॉर देम टू कम्युनिकेट their sellers and their customers in order to remain in constant contact. क्यों, why they do communication with the customers? In remain to constant contact, the latter turns out to be an important tool, both these groups acting as their representative or messenger with. Thus, the basic activities of business like purchase, sale, advertisement, marketing are carried out through letters. It is called commercial communication. See, commercial communication letters के थ्रू होता था आज से कुछ सालों पहले, बट राइट नाउ जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, हम ईमेल सेंड करते हैं. बट इट डज नॉट मीन कि आप कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो. जैसे अभी अगर मैं 6 महीने पहले बात करूँ, 6 महीने पहले नॉर्मल क्लासरूम चलते थे, क्लास में टीचर्स खड़े होते थे और वो आपको पढ़ाते थे. वो भी क्या था, कम्युनिकेशन था, राइट? अभी भी क्या हो रहा है, हम इंटरनेट के थ्रू पढ़ा रहे हैं. आई एम सिटिंग एट माई होम एंड यू आर एट योर होम, स्टिल वी आर टॉकिंग टू ईच अदर. आई एम सेइंग समथिंग एंड यू आर लिसनिंग मी. तो ये भी क्या एक तरह का कम्युनिकेशन है. मीडियम्स चेंज हो गए, वे चेंज हो गया, बट स्टिल वी आर चेंजिंग अवर आइडियाज, वी आर चेंजिंग अवर परसेप्शंस, राइट? वी आर चेंजिंग अवर फीलिंग्स, इमोशंस, राइट? तो कम्युनिकेशन का वे चेंज हो सकता है, बट कम्युनिकेशन कभी बंद नहीं होता. क्लियर? नाउ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, हाउ we
communicate, there is some process. What is the process? Process nothing, बस एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि लाइक ये पहले होना चाहिए, देन ओनली यू कैन शेयर. जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि अगर मान लो किसी से कुछ बात बोलना है, लाइक अगर आपको प्रिंसिपल को बोलना है कि मैम मुझे कल क्लास में नहीं आना है या मुझे कल बाहर जाना है, आई वांट टू टेक अ लीव, राइट. अगर लीव लेनी है, फॉर दैट यू हैव टू अप्लाई. उसके लिए क्या होना चाहिए? एक प्रॉपर मैनर होगा कि आपके दिमाग में एक आइडिया आएगा कि हाँ मुझे कल बाहर पापा के साथ बाहर जाना है, फैमिली के साथ बाहर जाना है, तो ओके ये आपका एक आइडिया हो गया. फिर मैम से बात करना है, तो मैम से बात करने के लिए उसको एक लेटर में प्रॉपर लिखने के लिए पहले सोचोगे कि क्या क्या मैं बोलूँ, क्योंकि कुछ गलत बोल दिया तो कैंसिल हो जाएगा. उनको लगना भी चाहिए ना कि तुम सच बोल रहे हो. एक प्रॉपर एक इनकोडिंग करेंगे, उसको एक प्रॉपर आइडिया जनरेट करेंगे, फिर उस आइडिया को आप पेपर्स में नोट करोगे, यानी एप्लीकेशन. फिर वो एप्लीकेशन को लेके जाओगे, मैम को दोगे, फिर वहां से मैम बोलेंगे ओके ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम है तो ठीक है, यू कैन टेक योर लीव, आई एम ग्रांटिंग यू लीव. तो ये क्या, अभी एक प्रोसेस है. डायरेक्टली तो ऐसा नहीं होता कि पापा ने फोन किया है, बता दिया है कि आपको कल हम लोग बाहर जा रहे बेटा, टीचर से परमिशन ले लो और तुम उठ के चले गए, टीचर कल मैं नहीं आऊंगा. It is not a way. You have to think like there is a proper manner, proper process. So in this way, there is a process in the commercial communication also. So now we will study about the process. Information remains the common denominating factor whether we refer to the communication, general or commercial communication. Technically speaking, the agencies taking part in the process of communication get involved harmoniously and exchange information, thought, concept, emotions, or message. Why we communicate? To exchange our thoughts, information, concept, emotions, or message. See, these things are exchanged through the communication. विदाउट कम्युनिकेशन ये चीजें एक दूसरे से पास ऑन होना पॉसिबल नहीं है. लाइक ज्यादा एग्जाम बड़े जगह पर नहीं जाते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं अपने घर की. भूख लगी है, विदाउट मम्मी को बोले मम्मी को नहीं पता चलेगा कि तुम्हें भूख लगी है. तुम्हें पानी चाहिए, तुम्हें कम्युनिकेट करना होगा, यू हैव टू कम्युनिकेट, राइट. सो विदाउट अपनी कम्युनिकेशन के तुम अपना जो प्रॉब्लम है वो कैसे एक्सप्रेस करोगे? इवन अगर खुश हो, बहुत ज्यादा हैप्पी है, बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया या बहुत अच्छा कुछ अचीव कर ली हो, तो वो भी तुम्हें कम्युनिकेट करना होगा. लाइक एक्सप्रेशन, चेहरे पे एक्सप्रेशन आएंगे कि तुम बहुत फील करोगे, तो वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन है, राइट. सो इमोशंस है ना वो भी, तो वो भी क्या एक तरह का कम्युनिकेशन बन गया. As part of the process of communication, an individual or a group attains to convey information, message to another individual group wherein different mediums and tools are used. We can use various methods and tools. At the end of the process of the exchange of idea, feedback is received from the other end. ठीक है, फीडबैक भी रिसीव करते हैं. जैसे पापा के पास गए, पापा ने बोला, मतलब पापा के पास गए, पापा से बोला पापा मुझे 100 रुपए चाहिए था, फ्रेंड के बर्थडे में जाना है. पापा ने एक झापड़ मार दिया, मिल गया ना फीडबैक. तुम गए, तुमने अपना आइडिया दिया पापा को, पापा ने तुम्हें फीडबैक दिया एक झापड़. तो कहने का मतलब क्या है, ईच एंड एवरी कम्युनिकेशन हैज अ फीडबैक. विदाउट फीडबैक के तुम्हें पता ही नहीं चलेगा ना कि क्या हो रहा है. अगर तुम मान लो गए और पापा से बोले पापा पैसे चाहिए 100 रुपए, पापा कुछ नहीं बोले, ऐसे चुपचाप बैठे हैं, तो तुम्हें क्या लगेगा? पापा गुस्सा हो रहे हैं या पापा दे देंगे? कोई आइडिया नहीं होगा. कि विदाउट फीडबैक, अगर वो ये भी बोलते हैं हाँ ठीक है बैठो दे रहा हूँ, फीडबैक है कि नहीं, है ना. और मान लो उठ के लगा दिए, तो भी फीडबैक है. ये समझ गया पापा ना बोलना चाहते हैं, डायरेक्टली नहीं बोल सके इसलिए लगा दिया, तो देयर इज अ फीडबैक. सो ईच एंड एवरी कम्युनिकेशन देयर शुड बी फीडबैक. विदाउट फीडबैक आइडिया नहीं लगेगा कि आप लोगों को वो चीज, मतलब कि सामने वाले को मैसेज क्लियर हुआ कि नहीं. जैसे हम जब पढ़ाते हैं तो हमें बोलते हैं बच्चों समझ में आया या नहीं आया, तो तुम्हें बोलते आया नहीं आया, यस सर नो सर, वो भी क्या एक फीडबैक है, राइट. तो फीडबैक इज नेसेसरी. Now, let us now understand the whole procedure of a communication as per the different stages. The process of communication is successfully carried out through the following stages. कुछ stages यहाँ पे इन लोगों ने दिया है, like मैं पहले चार्ट दिखा देता हूँ, then we will read. See here. I hope this is visible to you. See, ये टोटल है 7 पॉइंट्स हैं. स्पीकर होता है. मैं एक एग्जांपल देता हूँ, क्लियर समझ में आ जाएगा. जैसे जो मैंने एप्लीकेशन वाला एग्जांपल दिया ना, उसी को एग्जांपल लेके चलते हैं. कि घर पे कल बात हुई, पापा ने बोला कि हम लोग कल घूमने जा रहे हैं मनाली, ठीक है, शिमला मनाली घूमने जा रहे हैं. तो ये घर पे डिस्कस हुआ था इस बात को लेके. ओके, फिर तुम्हें बोला पापा ने कि तुम जाके अपनी प्रिंसिपल मैम को बता देना कि हम लोग कल मनाली जाने वाले हैं, सो तुम्हें लीव चाहिए.
तो तुम क्या बन गए यहाँ पे स्पीकर, क्योंकि तुम जाके प्रिंसिपल मैम से बोलने वाले हो। तो तुमने क्या किया, पहले तो तुम स्पीकर बन गए हो, राइट। फिर जो तुम्हारे पास मैसेज है, सी नाउ यू आर स्पीकर। सो मान लो मैं यहाँ पे किसी का नाम लिख देता हूँ, चलो मैं लिख देता हूँ अभय, ठीक है। अभय के पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि वो मनाली चलने वाले हैं, तो अभय अपने प्रिंसिपल के पास जाने वाला है, और मैसेज क्या है उसके पास कि वो लोग मनाली जाने वाले हैं, राइट। अब डायरेक्टली प्रिंसिपल के पास जाके तो नहीं बोल सकते मैम मनाली जा रहे हैं, नहीं ना। वहां पे उसको एक प्रॉपर लेटर में लिखना होगा, या प्रॉपर उसको इनकोड, उसको मैं क्या बोलते हैं कि प्रॉपर वर्ड देना होगा। विदाउट प्रॉपर वर्ड के सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको मैं क्या बोलते हैं, इनकोडिंग बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर कि एक स्पीकर होगा जो आइडिया शेयर करने वाला है, और क्या शेयर करने वाला है, दैट इज आइडिया, मैसेज, राइट, कि वो लोग मनाली जाने वाले हैं। और उसको शेयर करने के लिए वो क्या करेगा, उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करेगा, ही विल कन्वर्ट इनटू द वर्ड, वर्ड में या सिंबल्स में, एनी वे वो किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकता है। सो दैट इज इनकोडिंग। उसके बाद वो जाएगा, एक चैनल यूज करेगा। चैनल मीन्स यहाँ पे वो क्या यूज करेगा, लेटर, क्योंकि हम एप्लीकेशन देते हैं और एप्लीकेशन का मतलब ही क्या है, लेटर यूज करेगा वो। तो एप्लीकेशन यूज करेगा, फिर वो किसको देगा, प्रिंसिपल को। तो प्रिंसिपल विल डिकोड इट। डिकोड इट मीन्स प्रिंसिपल उसको रीड करेंगी, हाँ समझेंगी, ओके ठीक है, तो अभय है, इसको इसकी फैमिली को जाना है मनाली, और ये ऐसा कह रहा है, तो ठीक है चलो एटलीस्ट हाँ या ना बोल देते हैं। तो यहाँ पे लिसनर फिर क्या हो गया, यानी जो लिसनर है, रिसीवर, रिसीवर कौन है हमारा यहाँ पे, प्रिंसिपल, ठीक है। कौन है यहाँ पे, प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल बाद में फीडबैक देंगे, यस यू कैन और नो यू कांट बिकॉज एग्जाम्स नियर है। तो जो भी होगा फीडबैक दे विल से यू। सो देयर इज अ प्रॉपर मेथड, प्रॉपर प्रोसेस। डिकोडिंग का मतलब होता है कि सामने वाले, देखो तुमने तुमने क्या किया है, मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ। अभय है यहाँ पे स्पीकर है, उसके पास कुछ मैसेज है, उस मैसेज को उसने प्रॉपर कन्वर्ट किया कि सामने वाले को एक्सप्लेन कैसे करूंगा, क्योंकि तुम्हें एक्सप्लेन करना है ना, तुम्हें कुछ बोलना है ना, तो यू हैव टू क्रिएट अ प्रॉपर वर्ड। और तुमने कैसे एक्सप्लेन किया सामने वाले को, विद द हेल्प ऑफ द एप्लीकेशन, विद द हेल्प ऑफ अ लेटर। और सामने वाले को जब मिलेगा, यानी प्रिंसिपल को जब मिलेगा, तो उनको वो लेटर समझना पड़ेगा कि तुमने क्या लिखा है। तुमने अच्छी राइटिंग में नहीं लिखा होगा तो कहाँ समझ में आएगा, तो उनको वो डिकोड करना पड़ेगा कि सामने वाला स्टूडेंट है या सामने वाला पर्सन है, व्हाट ही वांट टू से, व्हाट ही वांट टू स्पीक, राइट। तो वो क्लियर समझना पड़ेगा, दैट इज नोन एज अ डिकोडिंग, क्योंकि विदाउट वो समझे तो तुम्हें आंसर देंगे नहीं, राइट। तो उसके बाद वो तुम्हें फीडबैक देंगे। क्लियर है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। एक चीज बता देता हूँ मैं यहाँ पे कि अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रोसेस इन लोगों ने बताया। प्रोसेस का मतलब कैसा बताया है, कहीं पे फर्स्ट नंबर पे ये है, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, एंड देन ये सेवन नंबर, राइट। बट तुम्हारे बुक में इन लोगों ने कैसे रखा है, फर्स्ट पे इसको रखा हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन, right? In this way they have given in your book, but nothing to worry, आगे पीछे हो सकता है, बिकॉज जो अलग अलग ऑथर्स थे, जिन लोगों ने अलग अलग लोगों ने इस कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन किया था, उनकी अपनी अलग अलग सोच थी, उनका अपना अपना अलग अलग व्यूज था। दैट्स वाई उन लोगों ने आगे पीछे कर दिया। एक स्पीकर होगा, उसको इनकोड करेगा, इनकोड क्या करेगा, मैसेज करेगा, मैसेज फिर सेंड करेगा, कैसे सेंड करेगा, विद द हेल्प ऑफ चैनल। उसके बाद सामने वाला पर्सन कौन है, रिसीवर, वो रिसीव करेगा, तो उसको वो क्या करेगा, डिकोड करेगा, देन ही विल रिप्लाई यू। क्लियर है, तो ये था कम्युनिकेशन प्रोसेस। नाउ वी विल सी द फुल प्रोसेस in a theory portion. Now understand here, the first one is a speaker, sender or transmitter. There must be a speaker, sender or transmitter, matlab who want to communicate, there should be one person who want to communicate. The sender or speaker with the intention of sending information, message, initiate the process of communication. See, अभय और प्रिंसिपल के बीच में जो भी बातचीत हुई थी, यानी जो भी उनके बीच में बात हुई कि अभय को कहीं जाना है, वो स्टार्ट किसने किया था, अभय ने। विदाउट उसके ये कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि प्रिंसिपल को तो सपना आएगा नहीं, कि वो अंतर्यामी है नहीं कि सबके मन की बात समझ आएंगे। आज अभय मेरे पास आएगा और वो मुझे कॉल करने वाला है, मैसेज करने वाला है कि मैं मनाली जाने वाला हूँ, राइट। सो देयर शुड बी ए स्पीकर, सेंडर और ट्रांसमीटर हु विल ट्रांसमिट द मैसेज।
Now, encoding it is a process undertaken by the speaker or sender. He arrange changes the concept idea using appropriate language, diction, sound, medium, so that the receiver, individual or group can sense the communication. See, दिमाग में आइडिया है, सामने वाले को कैसे समझ में आएगा? यू हैव टू कन्वर्ट इट बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट लैंग्वेज, एप्रोप्रिएट साउंड, एप्रोप्रिएट मीडियम. जैसे मुझे तुमसे कुछ कहना है, ये पीडीएफ है मेरे पास, बट मैं कैसे बोल रहा हूँ, मैं कैसे इनकोड कर रहा हूँ, आई एम एक्सप्लेनिंग. दिस एक्सप्लेनिंग इज इनकोडिंग. क्लियर है? फिर तुम लोग सुनोगे उस मैसेज को, कन्वर्ट करोगे, समझोगे, मुझे रिप्लाई दोगे यस आई अंडरस्टूड, यस आई अंडरस्टूड, नो आई डिडंट अंडरस्टैंड, राइट? इस तरह से अलग अलग एक्सप्लेनेशन होगा. Now, message. The speaker, sender, employing various devices, tools, means, and medium properly formulated concept, ideas, which is called info. See, जो एक proper idea होता है, that is known as a information or message. What you want to share, right? आप लोग क्या शेयर करना चाहते हैं, क्या इंफॉर्मेशन है, क्या कंसेप्ट है, क्या इमोशन है, that is known as a message. Clear? I hope this point is clear. Now, next one, channel medium. विदाउट मीडियम आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई सेल्फ. एक मीडियम होना जरूरी है. एक कहते ना कि कोई तरीका होना चाहिए बात करने का. फोन पे बात करना है, मैसेज करना है, या सामने से मिल के बात करना है, लेटर लिखना है. सो देयर शुड बी अ प्रॉपर चैनल और मीडियम सो दैट यू कैन कन्वे योर मैसेजेस. द डिवाइसेस और टूल्स सच एज अ लैंग्वेज, पिक्चर, साउंड, लेटर्स used to transmit information message are called medium. All these things are with the help of which we transfer our information is known as a medium. Okay, the speaker sender select appropriate keeping in mind the requirement in the situation. See, each and every situation में अलग अलग मैसेज यूज कर, मतलब अलग अलग चैनल यूज कर सकते हैं. जैसे प्रिंसिपल से बात करना है तो देयर विल बी लेटर, प्रॉपर एप्लीकेशन होगा. पापा से बात करना है तो सामने बैठ के बात कर सकते हैं. फ्रेंड से बात करना है, बहुत दूर रहता है, तो वी हैव टू कॉल, राइट? तो वहां पे हम लोग को फोन यूज करना होगा, तो वो भी क्या मीडियम है. विदाउट फोन के अब ऐसा तो है नहीं कि बहुत अंतर्यामी से बैठे रहोगे, याद करोगे मेरी बात सुन रहा है ना तू, ऐसे तो पॉसिबल होगा नहीं, राइट? तो एक मीडियम होना जरूरी. ये भी एक मीडियम ही है, पुराने जमाने में यूज होता था. अलग अलग बैठे बैठे मन से बात कर लेना, मन की बात. Now, decoding the process of understanding the coded information. See, सामने वाले ने क्या बोला है, you have to understand. जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे भूख लगी है, तो तुम्हें समझना होगा कि सामने वाले को भूख लगी, खाना देना है उसको. You have to understand, right? विदाउट मैसेज की जो प्रॉपर मैसेज है उसको समझे बिना रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द पर्सन इज सेइंग. नाउ सी हियर, the speaker sender has sent using particular form, tools or medium is called decoding. It is done by the receiver using the same tools or medium. For decoding there is a no different tool. The person who has used the, for example the Abhay used application letter, तो प्रिंसिपल भी क्या करेंगे, एप्लीकेशन लेटर के थ्रू ही समझेंगे कि अभय क्या बोलना चाहता है. ओके, कोई अलग से उनके लिए कोई बाहर से नहीं आएगा कि उस एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करेगा, उन्हें खुद समझना पड़ेगा, राइट? नाउ listener, the person who receives information message sent by the speaker sender is called the receiver. In the process of communication, principal was our main. Send किसको किया था? प्रिंसिपल को. तो she was the listener or receiver. The person who receives information message sent by the speaker is called listener. Now here the process of communication is undertaking keeping in mind the receiver. सी, जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं डायरेक्टली हम सबसे एक जैसा कम्युनिकेशन नहीं कर सकते. वी हैव टू थिंक अबाउट द पर्सन हु इज गोइंग टू रिसीव योर मैसेज. फॉर एग्जाम्पल, पापा से बात करना है अलग तरीके से बात करोगे, मम्मी से बात करना है अलग तरीके से, छोटे भाई से बात करना है अलग तरीके से, राइट? फॉर ईच एंड एवरी पर्सन देयर इज अ डिफरेंट वे. पापा से बात करना है, कभी ऐसे खड़े होकर बात करके बताओ, पापा से एक झापड़ लगाएंगे, राइट? और छोटे भाई से बात करना है, इधर एक झापड़ मारूंगा. तो क्या है, इट इज अ वे, राइट? It means कि for each and every person you have to keep that in your mind कि सामने वाले पर्सन को कैसे बात करना है, सामने वाला पर्सन कौन है. For that, अगर वो क्लियर है then only you can transmit your message, you can transfer your knowledge. Okay, now feedback. The process of communication thus proceeds further and ends with the response from the receiver which is called feedback.
विदाउट फीडबैक मैसेज इज इनकम्प्लीट, राइट। अगर फीडबैक नहीं है तो मैसेज क्या कंप्लीट नहीं है। जैसे मैंने कहा अभय ने अप्लाई किया है एप्लीकेशन के लिए, प्रिंसिपल ने नहीं कुछ बोला, तो क्या अभय का काम पूरा हो गया? अभय को पता चल गया कि सामने वाले ने या प्रिंसिपल ने रिप्लाई मतलब क्या उनका मन में है। जब तक प्रिंसिपल रिप्लाई नहीं करेंगी लाइक यस नो जो भी उनका रीजन होगा उसके साथ, अभय को कहाँ से पता चलेगा कि हाँ मुझे डिसीजन लेना है या नहीं लेना है? तो वो तो वहीं पे रुक गया ना बेचारा, सामने वाले के ऊपर डिपेंड है। जैसे तुम पापा के पास गए, पापा से 100 रुपए मांगे, पापा कुछ बोल ही नहीं रहे, चुपचाप अपने काम में बिजी, फिर उठ के चले गए, तुम्हें कहाँ से अंदाजा लगा कि पापा वो मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है हमें पैसे? so there should be feedback, right? The feedback from the receiver is very important as it determines the success of the process. Now if the sender is satisfied with the feedback from the receiver, the attempt is considered fruitful and the process successful. अगर feedback जो मिला है by the receiver कब fruitful and successful होगा? when you are satisfied with the answer or you are satisfied with the feedback. If there is a partial misunderstanding or lack of understanding, then it result into complete failure of a communication. एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कभी कभी कैसा होता है कि हम पापा से बोलते हैं कि पापा 100 रुपए चाहिए था, एक नोटबुक लेनी थी, राइट। फिर पापा बोले परसों ही तो दिया था 100 रुपए तुझे, फिर अब किस बात का नोटबुक लेना है? तो यू इसका मतलब क्या हुआ? पापा ने आधी इंफॉर्मेशन समझी, उन्होंने पूरा समझा ही नहीं कि वो अलग सब्जेक्ट के लिए था और आज अलग सब्जेक्ट के लिए है। तो देयर शुड नॉट बी पार्शियल मिसअंडरस्टैंडिंग या लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा, तो जो कम्युनिकेशन है वो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। सो यहाँ पे एक्सप्लेन करना जरूरी है कि पापा लास्ट टाइम अकाउंट्स की बुक ली थी, दिस टाइम स्टेट्स की नोटबुक लेनी है, तो दोनों अलग अलग है, देन कम्युनिकेशन फुल्ली कंप्लीट होगा। इन द केस इन दैट केस सेंडर स्पीकर हैज टू मेक फर्दर अटेम्प्ट। जब पापा नहीं समझे, पापा ने डायलॉग मारा परसों तो लिया था पैसे, देन यू विल अगेन स्पीक कि नहीं पापा आई नीड मनी फॉर द स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट, राइट। It should be noted at this point that language, words, script, symbols, pictures are known as a channels. How we are communicating is known as a channel. Like मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ये इंटरनेट या ये जो भी कहते हैं ना मीडियम है, ये सब हमारा क्या पे बन जाएगा? यहाँ पे चैनल बन जाएगा। एंड प्रेजेंटेशन थ्रू ओरल, written, expression or acting, these several means are considered as a medium. The process of communication can be explained through the following figures. Figures I have already explained you, right? I hope now process of communication is clear. Simple, इसको याद करने का only one simple way कि तुम्हें एक एग्जाम्पल माइंड में सेट करना होगा कि फ्रेंड को भी बात करना होता है, अगर फ्रेंड से भी कुछ डिस्कस करना होता है एक प्रॉपर एक आइडिया होता है। पहले तुम यानी मैं स्पीकर, फिर मैं क्या बात करना चाहता हूँ फ्रेंड से, मैसेज कैसे बात करना है मुझे, इनकोडिंग कौन से मीडियम से बात करना है, तो तुम्हारा चैनल हो गया। उसके बाद जब उसको बोलोगे सामने वाला रिसीव करेगा, समझेगा, रिप्लाई करेगा, कम्युनिकेशन फिनिश्ड। तो देयर इज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड यू हैव टू रीड इट, यू हैव टू लर्न इट। और हाउ यू विल लर्न इट? जस्ट कीप अ सिंगल एग्जांपल इन योर माइंड, राइट। कोई भी टाइप का एग्जांपल रख लो जो तुम्हें समझ में आ जाए। नाउ methods of communication. In methods of communication I will just give you some introduction and we will start next class. See here, as seen earlier, medium and channel play an important role in the process of communication. Without medium or channel we will not be able to communicate. Appropriate method of communication are used for different type of communication. The method of communication in which only 2 person are involved will be different. See, 2 person involved है, अगर सिर्फ 2 person लोग बात कर रहे हैं तो देयर विल बी डिफरेंट कम्युनिकेशन, डिफरेंट चैनल। बहुत सारे पर्सन को बात करनी है तो देयर विल बी डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखो नरेंद्र मोदी की मैं बात करता हूँ, अगर उन्हें किसी अपने पर्सनल पर्सन से बात लाइक अमित शाह से उन्हें बात करना है तो फोन कर सकते हैं, राइट। फोन कर सकते हैं या ऑनलाइन चैटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें सारी पब्लिक से बात करनी है तो उनको टीवी पे आना पड़ता है, न्यूज में आना पड़ता है कि भाइयों और बहनों और सॉरी मित्रों, राइट। तो ये सब कैसा है कि किससे बात करनी है, कितने लोगों से बात करनी है, इट विल डिसाइड योर चैनल, इट विल डिसाइड योर मीडियम। नाउ communication between an individual and group where there is a one speaker sender, many receivers, for example classroom, in that case process of communication will remain long or short or complex and the method would be changed, right। situation के ऊपर डिपेंड करता है। contrary
to it, when communication takes place between a group and an individual where the speaker sender are many and the receiver only one, for example press conference, then in that case the process of method of communication would change. In addition to this, when the communication is between two groups, for example group discussion, and then in this case too the process and method of communication would vary. ये कुछ एग्जांपल्स है कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह के कम्युनिकेशन मेथड यूज करते हैं. Also in a case when the speaker and receiver, whether individual or group, are at one place face to face, for example classroom, then the process of communication, selection and implementation of channel medium would be a particular type. Whereas when the speaker and receiver and whether individual or groups are not at the same place or connected through some means of mass communication, for example telephone, then the process of communication would vary. Or communication using channel and medium, implementation means how to see. Implementation का मतलब होता है किसी चीज को अप्लाई करना, how to apply, that is known as implementation. Communication using channel and medium, means of mass communication, has become easy within reach, removing a geographical distance. See here, मास मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब क्या है? मास मीडिया है. अमेरिका में बैठा इंसान ट्वीट करके इंडिया वाले को कुछ बोल सकता है, राइट? जैसे अलग अलग कंट्रीज में बैठे बैठे जो लीडर्स हैं वो एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, एक दूसरे को ट्वीट करके हाय लोग बोल रहे हैं. तो ये सब क्या है? बिकॉज ऑफ दिस जियोग्राफिकल डिस्टेंस जो है वो खत्म हो चुका है. पहले क्या होता था कि अगर किसी पर्सन से बात करनी होती थी कई दिनों तक वेट करना पड़ता था. जैसे हमारे जो पेरेंट्स थे या उनके पेरेंट्स यानी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो लोग एक दूसरे से बात करने के लिए उनको 15-15 दिन तक वेट करना पड़ता था, एक महीने तक. एक लेटर का रिप्लाई किया हुआ है तो उस लेटर को उनके वहां पहुंचने पर फिर वो सामने वाला पर्सन लेटर लिखेगा, फिर हमें जाके मिलेगा. बहुत लंबा प्रोसेस था. बट अभी कैसा है? व्हाट्सअप कॉलिंग है, वीडियो कॉलिंग बहुत सारे हैं, एक नंबर डायल किया 2 मिनट के अंदर बात हो गई, खत्म, राइट? तो बिकॉज ऑफ दिस जियोग्राफिकल डिस्टेंस हैज बीन रिमूव्ड. The methods of communication can be understood in the following way. Now, if you want to understand the communication, there is a two different method, oral and written. We will study about this method in the next class. Till that, you can read and revise, right? I hope today you enjoyed the class. If any problem, can contact me. If any feedback, without feedback, nothing is there. So if you want to communicate, you have to give feedback, right? Yes, no, अच्छा, बुरा, नहीं समझ में आया, it depends on you, right? So thanks to all of you for staying till 10:30. Now you all can leave. If you want to say something, you can say. And thanks to all of you. Bye to all of you. This is a one-way communication. I am saying, see, I am waving my hand. It is a communication. Bye बोल रहा हूँ, है ना? हाँ, फ्रेंड्स को बोलते हैं ना ऐसे, बोलना जरूरी नहीं है. बाय, हो गया. इट इज ऑल्सो इन कम्युनिकेशन. In our daily life, can you send PDF? Definitely, don't worry, I will send today on itself. Bye.